इसका रिवीजन आप बुक से कर लिया, अब यहाँ पे रिवीजन एक बार Change its state. मैटर चेंज states. Have you ever given a thought what the various things around us are made up of? I am sure you must have. Everything in this universe is made up of material which the scientists refer to as matter. The matter exists in three states, namely solid, liquid, and इसमें gas. जो साइंटिस्ट ने जितने भी थे, आपने उसका डेटा पढ़ा था, सब लोगों ने क्या क्या बोला था, जो इंडियन फिलोसफर थे, जो ग्रीक फिलोसफर थे, अपनी बातें सभी लोगों ने एक ही बात कहा था, क्या बोला था कि जितनी थिंग्स हैं सभी क्या बनी हुई है, हाँ सभी मैटर से बनी हुई। तो हमारे इंडियन फिलोसफर ने भी जैसे यही दिया कि जो भी चीजें बनी है, क्या 5 तत्वों का उन्होंने ही दिया था ना, पंच तत्व बोला था, जो आपके हाँ ये सभी आपके जो हमारे इंडियन फिलोसफर, और वही बोले कि ये मैटर से बना है। फिर इसके बाद ग्रीक जो आए थे वो लोग ने भी यही बात कहा था, कुछ मिलता जुला। इसके बाद फिर क्या बोले कि इनके स्टेट्स तो होते हैं, आप मतलब ये देख लिया पहले। फिर इसका स्टेट आपने देखा था कितने होते हैं, मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है, ठीक है। और उसमें भी आप हमें इसके पहले हमें क्या है, आपके बुक में दिया कि 2 नेचर पढ़ना है इसका, फिजिकल नेचर एंड केमिकल नेचर। तो अभी हम मैटर्स का इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, फिजिकल नेचर पढ़ेंगे। केमिकल नेचर आपके 2nd या 3rd चैप्टर में पढ़ना होगा, ठीक है। वही स्टेट के अकॉर्डिंग बता रहा है, 3 है तो तीनों को आप देख लो। An interesting example to understand the states of matter is of water, since it can exist in all the 3 states. Ice is the solid state of water that exists at and below a temperature of 0 degrees Celsius. Water is liquid, and vapors or steam is the gaseous state of water. The liquid state, that is water, can be converted into ice by freezing, and similarly, the gaseous state, that is water vapor, can be achieved by boiling the water. In a similar manner, ice can be converted into water by raising the temperature. We can thus infer that one state of matter can be converted into another state by changing the temperature and also by changing the pressure. But here we would restrict our discussion to the conditions of constant pressure. Let us now understand how the temperature affects the state of matter. When heat is supplied to a crystalline solid, the kinetic energy of its constituent particles increases. Due to this increase in kinetic energy, the particles start vibrating with a greater speed as before. On further increasing the temperature, the energy supplied in the form of heat overcomes the force of attraction between the particles and causes them to flow, thereby leaving their fixed positions. Eventually, the solid melts and is converted into liquid. इसका ये वाला क्वेश्चन का ये लिखो आप फर्स्ट। Student, it should be noted that the heat is supplied to the solid at constant pressure. This process of melting, that is, the change of solid state into liquid state, is called as fusion, and the temperature at which the solid becomes liquid at atmospheric pressure is called its melting point. The melting point of a solid depends upon the strength of forces of attraction between the particles. Higher the strength of forces of attraction, higher is the melting point. Let us learn some more facts regarding fusion of solids. On heating some ice in a beaker at low flame, ये समझना बहुत जरूरी है। forces of it. Even this increase in kinetic ice can be converted into water. Vapors or steam is the gaseous state of water. The liquid state, that is water, can be converted into जैसे कि जो स्टेट है, स्टेट के जो फॉर्म को क्या किया मतलब चेंज किया जा सकता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकता है। तो वाटर से अगर आइस में करना है तो फ्रीजिंग करोगे, अगर आइस से आपको फिर लिक्विड में करना है तो किस क्या करोगे, मेल्ट करोगे। हाँ ठीक है, मेल्टिंग आप करोगे, बॉइलिंग करोगे। अगर उसको फिर गैसियस फॉर्म में करना है तो बॉइल करोगे जो, हाँ तो फिर क्या हो जाएगा वो, उस
फॉर्म मिल जाएगा। ice टेम्परेचर by पे डिपेंड कर रहा है, freezing, and टेम्परेचर कैसा है। similarly, the gaseous state, that is water vapor, can be achieved by boiling the तो water. वाटर वेपर बन जाएगा। In a similar manner, ice can be converted into water by raising the temperature. We can thus infer that one state of matter can be converted into another state by एक स्टेट से कई Changing the स्टेट में चेंज हो temperature. सकता है। and also by changing the pressure. But here we would restrict up. अब गैस से लिक्विड में क्या होता है, जब प्रेशर देखो, पहला तो आपने बाय हीट से चेंज किया, सेकंड किससे चेंज करोगे, बाय प्रेशर। ठीक है, प्रेशर देखिए, लिक्विड है मतलब कि आपका गैस है, तो गैस में जितना कंप्रेस करते जाओगे, प्रेस करोगे, वो क्या हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे बोला है A discussion to the जितना conditions कंप्रेस of करोगे, constant दबाओ, pressure. प्रेशर देखिए। Let us now understand how the temperature affects the state of matter. अंदर जब हवा को प्रेस करेंगे वो पानी में When heat is supplied to a crystalline आपने solid, सिलेंडर देखा the kinetic energy of its उसमें जो constituent भरा जाता है ना particles जो गैस, increases. उसको पूरा कंप्रेस्ड फॉर्म में Due होता to है, this उसका increase in सिलेंडर में kinetic energy, पूरे particles उसके लिए start पार्टिकल्स इतना vibrating with a कंप्रेसर greater डाल दिया speed जाता है, as before. कंप्रेस्ड मतलब इतना दबा दिया जाता है कि वो फिर क्या हो, गैसियस फॉर्म में जो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो जितने भी आप उसको फिल करते जा रहे हो, उसमें स्पेस बनता जा रहा है, प्रेशर देके आप उसको क्या कर रहे हो, फॉर्म को उसमें चेंज करते जा रहे हो, प्रेशर के थ्रू भी फॉर्म चेंज करते हो। अब यहाँ पे क्या हो Further रहा है, increasing the temperature, the energy supplied in the will start vibrating increases. इसका इफेक्ट क्या होता है, Due आप to जरा this देखो, increase in kinetic energy, the जब heat दे रहे particles हो, start vibrating with हीट दे रहे हो तो क्या हो रहा है, इसके पार्टिकल्स जो अभी जुड़े हुए थे अब वो क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, अब वाइब्रेट होके क्या करेंगे भाई, a greater speed as before. On further increasing the temperature, the energy supplied in the form of heat overcomes the force of attraction between the particles and causes ये अभी इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जब आप हीट ज्यादा दोगे, ठीक है, मतलब कि आप एनर्जी जो हीट के फॉर्म में दे रहे हो, तो जब हीट इंक्रीज करोगे तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। अब उनके बीच में क्या बनेगा, गैप बनेगा। अब उनको क्या कर सकता है, अलग कर देगा पार्टिकल्स को। अब ये सॉलिड का अगर एग्जांपल ले रहे हो, them to flow, thereby leaving their fixed positions. देखो अब फॉर्म चेंज हो रहा है, Eventually, the solid melts and is converted हीट into दे रहे हो तो liquid. सॉलिड को क्या बना दोगे आप, लिक्विड बना दोगे। Student, it should be noted that the heat is supplied to the solid at constant pressure. This process of melting, that is, the change of solid state into liquid state, is called as fusion, and the temperature आपने वो स्टेप पढ़ा था, बताया था कि जब आपको सॉलिड चेंज ऑफ द सॉलिड स्टेट इनटू द लिक्विड स्टेट में, तो क्या होगा, उसको क्या कहला, उसको क्या बोलोगे आप, प्रोसेस ऑफ द मेल्टिंग, जो उसमें आप उसको फ्यूजन बोलोगे। सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है स्टेट, तो क्या बोलोगे उसको, आप उसको फ्यूजन बोलोगे। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ द स्टेट वहां पे होगा आपका, जो देख लो ये इसमें भी दिया है, अच्छे से दिया है। बैठना नहीं आ रहा। नहीं नहीं, को बात नहीं, आप लर्न कर लेना, उसको ये मत, इसमें मत रहना कि नहीं हाँ नहीं आ रहा है। वो एक चीज देखो, लिमिटेशन मत रहना, आप अपनी जो पढ़ लिए पूरे चैप्टर को समराइज करके जाओ। मैं यही कहूँगी, आपको ये नहीं कहना कि नहीं आ रहा। वो क्या पता टीचर के मन में क्या है, वो कहते कुछ और है, क्वेश्चन जब भी बनने लगते हैं ना अच्छे, तो उसमें डाल देते क्वेश्चन को, कहीं से भी घुमा के डाल। इसी को अगर सपोज करो उन्होंने कहा उतने टाइम में, तो उतने में स्टेट की बात हो गई है ना। अब स्टेट में कैसे क्वेश्चन घुमा के पूछ देंगे, चेंज करने के लिए वो बता सकते हैं, तो आप अपना रेडी रखो। आपको ये बिल्कुल उन पे भरोसा करके ऐसे नहीं करना कि नहीं हाँ, क्योंकि नहीं हाँ मुझे बस लिमिटेशन उन्होंने बता दिया, छोटे बच्चों को इतना सीखना, ए बी से डी तक आएगा तो उतना, ऐसा नहीं करना। आपको पूरा जेड तक याद रखो, कैसे भी आगे हम कर लेंगे। ठीक है, आपको अगर पढ़ा दिया गया तो ऐसा तो नहीं कि सिलेबस डन नहीं है, तो जिसकी वजह से आपको शॉर्ट करके जाना है। पूरा चैप्टर आप समराइज हो, इस पे ज्यादा फोकस करो, इसके बाद अदर को भी आपको छोड़ना नहीं है, रिवाइज करके जाना। इसको क्या बोलोगे, फ्यूजन। कंफ्यूज नहीं होना है, और बिल्कुल temperature at which the solid becomes liquid at atmospheric pressure is called its melting point. देखो एक चीज The क्या है melting कि मेल्टिंग पॉइंट किसे बोलोगे, कोई सॉलिड जो है कि एटमॉस्फेरिक मतलब कि क्या टेम्परेचर पे, जैसे हमारा नॉर्मल टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्या होता है, अगर बात की जाए तो अगर उस टेम्परेचर पे अगर आपका कोई भी वस्तु जो है, जो भी थिंग्स है, अब सॉलिड से लिक्विड में मेल्ट होती है, तो हमारा 37 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, तो ये अब मतलब इस टाइप का टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा अलग बात है, नॉर्मल टेम्परेचर हमारा क्या रखा जाता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, उतने टेम्परेचर पे अगर कोई सॉलिड किस में मेल्ट हो गया,
लिक्विड में हो गया, मेल्ट हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ये याद रखना, ठीक है। Atmospheric pressure is called its melting point. The melting point of a solid depends upon the strength of forces of attraction between the particles. Higher the अब उनकी मेल्टिंग पॉइंट ये डिपेंड करेगा उनकी स्ट्रेंथ पे कि उनके अंदर कितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनका, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मेल्ट होगा वो। अब जैसे वीक फोर्स लगेगा, जब लेड है, लेड कोई है, उसका जो कह सकते हो, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 600 आपका केल्विन है, ठीक है। अब देखो वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स किसमें, कॉपर में लगा हुआ है, तो ये क्या है आपका, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 1395 केल्विन है। अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स की बात की जाए जो एल्युमिनियम है आपका, एल्युमिनियम में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स की बात कह रहा है, अब उसमें क्या है, उसका मेल्टिंग नहीं, सबसे वेरी स्ट्रॉन्ग ये है ना, ये इसका स्ट्रॉन्ग है 1932 केल्विन, तो सबसे ज्यादा आपका इसका है ना मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका मतलब है क्या कि इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसको टाइम लगेगा, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग पे ही उसके डिपेंड करेगा। forces of attraction, higher is the melting point. Let us learn some more facts regarding fusion of solids. On heating some ice in a beaker at low flame, you will observe that ice melts at a temperature of 0 degrees Celsius or 273 Kelvin at the atmospheric pressure. It is also observed that even when the melting starts, the temperature of the system remains constant till the entire solid melts, even though heat is being continuously supplied. You must be wondering where this system remains constant at low flame. इस क्वेश्चन को सुन लो, एक चीज माइंड में ये नहीं रखो कि बस हमारा वो चीज इतना आ रहा है, अभी माइंड में मत रखना, नहीं तो फिर आप नहीं आगे कॉन्सेप्ट समझ पाओगे। आपको यार ना मुझे करना है सब कुछ करके अच्छे से, मतलब तैयार कर जाना, उसमें बेस्ट देना है, इसमें भी देना है, मेरा देना है गुड बेटर बेस्ट, मतलब बेटर तो कर ही लूँ, ठीक है। तो इस तरीके से करना आपको माइंड में कि अभी के लिए नहीं तो नेक्स्ट टर्म होगा तो पूरा तो देगा ना, तो चीजें अभी आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को रखो। फ्यूजन ऑफ सॉलिड को क्या करें, अब इसमें क्वेश्चन देखो पूछ रहा है, आ You रहा will है, observe that ice melts at a temperature of 0 degrees Celsius. देखो कह रहा है कि क्या हो रहा है कि जब आप उसको हीट देते जा रहे हो, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या है, क्या है 0 डिग्री सेल्सियस टू, उसको केल्विन में कहोगे तो 273 केल्विन बोलते हैं, उस टेम्परेचर की यूनिट अगर चेंज कर दो, ठीक है, एट द 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है भाई, Celsius or 273 Kelvin at the atmospheric pressure. तो अब It क्या is हो रहा है? also observed that even when the melting starts, the temperature of the system remains constant till the entire solid melts. Even कह रहा है though कि एक बार आप नोटिस करोगे कि देखोगे कि जब हीट दे रहे हो टेम्परेचर क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है, 0 पे रुक जा रहा है, उससे ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो ऐसा क्यों, जबकि बर्फ पूरा मेल्ट हो रहा है, तो ऐसा क्या, वही क्वेश्चन इसमें छुपा है। तो आप देखो heat is being continuously supplied. हीट आप कंटिन्यूस दे रहे हो, लेकिन वो जो उसका टेम्परेचर आगे बढ़ नहीं रहा है और आपका मेल्ट भी हो गया, लेकिन ऐसा क्यों रुक गया है, तो You must be wondering where this energy goes, isn't it? लेटेंट हीट के बारे में पढ़ा था, This heat energy is actually used up in overcoming the forces of attraction between the particles of the solid during the change of state from solid to liquid. As there is no increase in kinetic energy of the वही कह रहा है कि वो जितना भी मतलब आप हीट देते जा रहे हो तो वो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगा उसको फॉर्म को चेंज करने में लगा रहा है केवल, ठीक है, तो उसकी वजह से कांस्टेंट हो जा रहा है टेम्परेचर बढ़ तो रहा है लेकिन दिखा नहीं रहा है, 0 पे एक लेवल पे है, मेल्ट हो रहा है, उसका जो फॉर्म चेंज करना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हटाने में वो लग जा रही है एनर्जी, तो उसी को क्या बोल रहा है आप देखो। particles, the temperature of the system also does not allow any rise during the change of state. The heat therefore gets hidden within the contents of the beaker and is called as the latent heat. उसी को क्या बोलते हो, लेटेंट हीट बोलते हो, ठीक है, ये चीजें आपका क्लियर हुआ इतना। चलो इसको हम फिर इफेक्ट ऑफ द, मतलब क्या ये हम आगे देख लेंगे, अभी जरा सा उसका आप